objectives are वही continuity जो हमने last time छोड़ी थी. Basically हम कर रहे हैं epidemiology of communicable diseases, infectious diseases basically. और उसमें जो हमने last time general definitions की थी, उसी में थोड़ी और general definitions. Eradication तो word तुम लोगों ने बहुत सुना हुआ है. तो what is the difference between eradication and elimination? एंड डायनामिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन कुछ करेंगे हम, और उसमें मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और जो सारी उसकी चेन है वो देखते जाएंगे. So let's start with the scenario today. A 45-year-old lady underwent surgery for fixation of fracture. Post-operatively, she was fine. Recovery was uneventful. कोई इस तरह का मसला नहीं था. लेकिन after 2 days of hospital stay, उसका जो wound है, जो surgical wound है, उसके कुछ इस किस्म के हालात हैं. What can be the probable diagnosis? Anybody, if you are in the chat, you can answer in the chat box. Just for 5 seconds, we are waiting, and then we will go next. Okay, so yes, we got one answer. The foyer is very nice. Infection, good. Anybody else who wants to add on? Yes, पता चल रहा है कि this is infection, पस पड़ गई ये वो. But what do you think can be the source of infection? So we got hospital acquired. Very good. So this is actually a hospital acquired infection which we call iatrogenic. So what is its characteristic? ये अभी हम आगे देखते हैं. Next, let's move to the next scenario. So this is a 56-year-old man who was prescribed a course of fluoxetine by the GP. और few days later he presented with a itchy rash. कोई मेडिसिन उसने नहीं ली, occasional पैरासिटामोल के अलावा कोई insect bite, किसी रिएक्शन टू फूड की हिस्ट्री नहीं है. वो सिर्फ अगर कुछ ले रहा था, anything positive is in the history is कि वो फ्लूक्लॉक्सेसिलिन ले रहा था. So what do you think? मतलब वो एक ड्रग ले रहा है और आफ्टर डेथ हो गया. तो what do you think? इसकी क्या प्रोबेबल कॉज हो सकती है? Allergic reaction, very good. Anaphylaxis, drug allergy, very good. अब इसमें you are everybody is right. फरहान, उसामा, फराज, very nice. Everybody is right. लेकिन the other thing which we need to notice is allergy तो हो गई, लेकिन वो medicine prescribe किसने की थी? उसने खुद तो नहीं ली. It was a healthcare worker जिसने उसे prescribe की. करना क्या चाहिए था? अगर किसी ड्रग की एलर्जी इस तरह की होती है तो कोई ना कोई एक सेंसिटिविटी टेस्ट करना चाहिए या कोई इस तरह की चीज करना चाहिए. बट ही डिडंट डू इट. या कोई हिस्ट्री कि आपको पहले तो इस तरह का कोई ड्रग रिएक्शन नहीं हुआ, जो कि नहीं हुआ, जो कि उससे नहीं ली. इसका मतलब ये कि दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू द फिजिशियन. ये सारी चीजों के लिए you must have taken a proper history, something to test it. So these are the two types of infection which we acquire in healthcare settings. One is the nosocomial infection. Nosocomial infection is कि आप हॉस्पिटल पहले जब आप एडमिशन पे आए हैं, जब आपका हेल्थ केयर सेटिंग से इंटरेक्शन हुआ, यू डिडंट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ एनीथिंग. और जब जो इन्फेक्शन है वो ओरिजिनेट हुआ, उसके इंक्यूबेशन वो ओरिजिनेट हुआ विद इन द हेल्थ केयर सेटिंग, और उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड था वो भी इस बात को जस्टिफाई कर रहा था. सो दिस इज अ नोसोकोमियल इन्फेक्शन. हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन. हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन वो हैं जो किसी हेल्थ केयर एक्टिविटी की वजह से होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर एक्टिविटी, जिससे कोई भी फॉर द टाइम बीइंग उसको कोई डिजीज होगी, इम्पेयरमेंट हो जाए, डिसेबिलिटी और इवन डेथ. सो anything occurring in a healthcare setting, infection is nosocomial infection, while those infection which occurs and those conditions which occurs due to an due to some healthcare worker activity, these are called the iatrogenic infection. Moving on to the next. Anybody who can diagnose this disease? What is this condition? Just think for it for a while. If anybody can explain what is this. Okay, so one I have said herpes. Anybody else who can who want to guess something?
plague, another answer is yes, bee sting, very nice. So इसका leprosy, इसका मतलब ये है कि सारे वो कर रहे हैं, and the correct answer is by Zoha, smallpox. This is smallpox, and it's no wonder कि तुम लोगों को इसका पता ना हो, क्योंकि अब smallpox जो है उसका कोई केस इस टाइम पूरी दुनिया में नहीं है। तो एक वहां पे ये केस तो शायद कभी मैंने भी नहीं देखा, just in the pictures. So this is smallpox, and why this is not in the world? एक टाइम पे इसने havoc create किया हुआ था, and now it's not in the world, anywhere in the world, because it has been eradicated. Now, what can this be? What is this disease? If anybody can diagnose this. पोलियो, वेरी गुड. सो दीज आर द राइट आंसर. क्यों? क्योंकि ये हमने डिजीज देखी है, हमारे सामने ये रही है. सो दिस इज पोलियो. दोनों में क्या डिफरेंस है अगर देखा जाए? वही जो डिफरेंस है वो है इलिमिनेशन और इरेडिकेशन में. इरेडिकेशन इज एब्सोल्यूट प्रोसेस. मतलब इरेडिकेशन का मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी नहीं है, वो जीरो केसेस हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड वो बिल्कुल खत्म हो गया, किसी भी फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा. So termination of all transmission of infection by extermination of infectious agents through surveillance and containment. This is eradication. और ये हमने अचीव किया स्मॉल पॉक्स से. Elimination is कि हमने एक डिजीज को इरेडिकेट कर दिया फ्रॉम अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, मतलब उसको बहुत कम कर दिया, कुछ में तो बिल्कुल खत्म कर दिया, कुछ में बिल्कुल कम कर दिया, लेकिन throughout the world अभी वो खत्म नहीं हुआ. You have still the case reporting from it. जैसे कि पोलियो इस टाइम पूरी दुनिया में से खत्म हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ रहा जहाँ पे पोलियो के केसेस अभी भी आ रहे हैं. सो पोलियो हैज बीन, अगर देखा जाए तो कई वो बाकी सारे मुल्कों में दैट हैज बीन एरेडिकेटेड, लेकिन टू बी ऑन अ ट्रू सेंस इट्स नॉट एरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, इट्स इन द एलिमिनेशन फेज. मतलब खत्म हो गया है बाकी जगह, लेकिन क्योंकि ये दो कंट्रीज अभी तक रिपोर्ट कर रही हैं तो हम इसे इरेडिकेट नहीं कर सकते वो वाली केसेस. बट यस, इट्स इन द लिस्ट ऑफ डिजीजेस व्हिच कैन बी इरेडिकेटेड. जैसे मीजल्स इसके साथ है एंड डिप्थीरिया, मतलब इनको हम खत्म कर सकते हैं. वही वाली बात कि जब बाकी सारे मुल्कों ने खत्म कर दिया तो इसका मतलब कि ये खत्म हो सकता है, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस, सोशल रीजंस एंड अदर फैक्टर्स वो नहीं हो रहा. तो जब तक इसका हर तरफ से केस रिपोर्ट होना बंद नहीं हो जाएगा, इवन फ्रॉम पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये कंट्रीज भी, बल्कि सारी कंट्रीज एक टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल फ्री नहीं हो जाते कोई केसेस, until then हम इसे elimination कहेंगे. But once they are free from the polio, the whole world is free from polio, फिर हम कहेंगे कि हमने पोलियो की eradication achieve कर ली. So eradication is all or none phenomenon. Next, coming to the dynamics of disease transmission. Basically, disease transmission में जो सबसे important चीज है that is chain of infection. Now, प्लीज इस चेन को अच्छी तरह देख लो. क्यों? नंबर 1, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नंबर 2, वेरी फेवरेट क्वेश्चन इन द ऑस्पी. जब तुम्हारे प्रॉफ में ऑस्पी होगी कम्युनिटी मेडिसिन की, जो कि हर बच्चे की होगी, 10 स्टेशन होंगे, 4 मार्क्स की, तो यू आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन. बड़ी कॉमनली ये कोई ना कोई ये पिक्चर पड़ी होती है, कोई एक चीज हम कवर कर देते हैं एंड वी रिक्वायर यू टू राइट इट. सो दैट इज चेन ऑफ इन्फेक्शन. अब चेन ऑफ इन्फेक्शन के 3 मेजर कंपोनेंट्स: सोर्स और रिजर्वायर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ससेप्टेबल होस्ट. मतलब ये बेसिकली लिंक्स हैं जो आपस में बन रहे हैं. सोर्स ऑफ रिजर्वायर वो जहां से एजेंट ने ट्रांसफर होना है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो बेसिकली दूसरे बंदे तक जाएगा कैसे, और दूसरे एंड पे आपका ससेप्टेबल होस्ट पड़ा हुआ है. सो एक तरफ वो बंदा जिसमें एजेंट है, एक तरफ वो बंदा जो उससे वो डिजीज एक्वायर करेगा, और सेंटर में उसका मोड कि हाउ इट्स गोइंग टू बी डिलीवर टू दैट पर्सन. वो अब हमारा जो लेक्चर का बाकी पार्ट है सारा, वो बेसिकली इन्हीं चीजों को डिस्कस करने में. सो लेट्स गो टू द सोर्स और रिजर्वायर. अगर देखा जाए तो ये वाला रिजर्वायर और सोर्स, these are a bit confusing terms. क्यों? और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, और यही वाली चीजें जब हम वाइवा में पूछते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं. रिजर्वायर, सोर्स, रिजर्वायर, सोर्स. रिजर्वायर मतलब ये बेसिकली लिंक्स हैं जो आपस में बन रहे हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो बेसिकली दूसरे बंदे तक जाएगा कैसे, और दूसरे एंड पे आपका ससेप्टेबल होस्ट पड़ा हुआ है. सो एक तरफ वो बंदा जिसमें एजेंट है, एक तरफ वो बंदा जो उससे वो डिजीज एक्वायर करेगा, और सेंटर में उसका मोड कि हाउ इट्स गोइंग टू बी डिलीवर टू दैट पर्सन. वो अब हमारा जो लेक्चर का बाकी पार्ट है सारा, वो बेसिकली इन्हीं चीजों को डिस्कस करने में. सो लेट्स गो टू द सोर्स और रिजर्वायर. अगर देखा जाए तो ये वाला रिजर्वायर और सोर्स, these are a bit confusing terms.
क्या होता है? कोई भी चीज, एनीथिंग, वो आदमी हो, वो एनिमल हो, वो कोई आर्थ्रोपोड हो, वो कोई प्लांट, सॉइल या सब्सटेंस हो, जिस पे अब आगे वो 3 क्राइटेरिया फुलफिल करे, वो इन्फेक्शियस एजेंट रहे, वो उस पे सर्वाइवल के लिए डिपेंड करे और वहां पे मल्टीप्लाई करे सो दैट वो वहां से ट्रांसमिट हो सके। तो रिजर्वॉयर वो चीज है जहां पे एजेंट रहेगा, जहां वो सरवाइव करेगा, जहां वो मल्टीप्लाई करेगा। कमिंग टू द सोर्स, वही सारी चीजों में से अगर एजेंट ना मल्टीप्लाई करता है, ना करता है, सिर्फ वो उसको पास ऑन कर देता है, मतलब वो एजेंट वहां पे सर्वाइवल के लिए नहीं बैठा हुआ, वो एजेंट सिर्फ वहां थोड़ी देर के लिए बैठा है, ना वो मल्टीप्लाई करेगा, ना वो सर्वाइव करेगा, बल्कि अगर टाइम ज्यादा हो जाए तो शायद वो वहीं पे उसकी डेथ भी हो जाए। सो जब तक वो उस वाले चीज पे वायबल फॉर्म में रहेगा और सिर्फ कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लियर करने के लिए ओके। तो कमिंग बैक, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स सी दिस एग्जांपल। एक टाइफाइड के केस में व्हाट वी डू इज, एक एजेंट होता है जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा होता है। अब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो मल्टीप्लाई भी करेगा, वो डिवाइड भी करेगा, वो सरवाइव भी करेगा और फिर वो उस वाले में अपने सिम्टम्स भी शो करेगा, एट टाइम्स नहीं शो करेगा डिपेंडिंग। सो वो ह्यूमन जिसके अंदर वो एजेंट रह रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, वो बेसिकली ह्यूमन उसका रिजर्वॉयर है। अब उसने उसे ट्रांसमिट करना है पीसेस के थ्रू। पीसेस के थ्रू जब वो जाएगा तो वो जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसमें भी जाएगा, या फिर किसी ऑर्थोपोड के जरिए, या फिर वो जब फूड हैंडलिंग करेगा तो उस फूड के जरिए वो आगे वो किसी को ट्रांसमिट कर देगा। अब अगर देखा जाए तो इसमें हुआ क्या कि एजेंट इनफेक्ट मल्टीप्लाई तो होस्ट के अंदर कर रहा था, एक सॉरी रिजर्वॉयर के अंदर कर रहा था, लेकिन जब वो उसके अंदर गया, जब उसमें ट्रांसमिट हुआ तो वो डायरेक्टली उस बंदे से ट्रांसमिट नहीं हुआ, वो एक कंटामिनेटेड फूड से हुआ, वो कंटामिनेटेड वाटर से हुआ, वो किसी चीज के थ्रू हुआ। तो बेसिकली आपका रिजर्वॉयर और था लेकिन सोर्स आपका कंटामिनेटेड फूड और वाटर था। तो व्हाट इज एग्जैक्टली सोर्स? सोर्स एग्जैक्टली वो चीज होती है जिससे ससेप्टेबल होस्ट को चीज ट्रांसफर हो गई है। अब वो बेशक वो एजेंट डायरेक्टली रिजर्वॉयर के थ्रू जाए या फिर बीच में डिफरेंट आए, ये बिल्कुल उसी तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है जैसे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं कि एक ट्रांसमिशन में आप डायरेक्टली भी चले जाते हो, मतलब डायरेक्टली हाथ में लाया और अगले बंदे को इन्फेक्शन दे दिया, और दूसरे में क्या होता है कि आपने नहीं भी मिलाया, जो ये आपके सैनिटेशन और ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर है ये इनडायरेक्टली उस तक पहुंचाते हैं। सो इसमें सोर्स डिफर कर गई। सो एट टाइम्स अगर आपकी डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रही है तो सोर्स और रिजर्वायर विल बी सेम, लेकिन अगर आपकी डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं हो रही तो इट कैन बी डिफरेंट। अभी ये ट्रांसमिशन हमने आगे भी करनी है, सो द कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर। इसी तरह अगर ये टेटनस में देखो तो टेटनस के बैक्टीरिया सॉइल में होते हैं, वो डायरेक्टली सॉइल में ही ग्रो करते हैं, वहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं, वो वहीं पे सरवाइव करते हैं। और जब कभी खुदा ना खास्ता किसी को कोई वूंड हो जाए या उसमें, तो वो उस कंटामिनेटेड सॉइल के थ्रू एग्जैक्टली डायरेक्टली वूंड में जाते हैं, वहां पे डिजीज कॉज करें। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो जो सॉइल है वो एजेंट हार्बर भी कर रही है, वो सारी रिजर्वॉयर का क्राइटेरिया पूरा कर रही है, उसमें ट्रांसमिशन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, वो वहां सर्वाइव भी कर रहे हैं एजेंट, और फिर उसी सॉइल से वो डायरेक्टली स्किन में ट्रांसफर हो गया। सो इस केस में सॉइल आपका रिजर्वायर भी है और सॉइल सोर्स भी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्वायर और सोर्स।
रेजर्वॉयर वो होगा जहां एजेंट मल्टीप्लाई करेगा और सारी तरफ से वो सारा टाइम रहेगा और सरवाइव करेगा, और सोर्स वो इमीडिएट चीज है जिसकी वजह से ससेप्टेबल होस्ट को disease हुई। क्या पता एजेंट कहीं दूर बैठा हो और उसके जो ये सारे फ्लाइज और वो ये सारा, जैसे अक्सर टाइफॉइड में घर में किसी बंदे को टाइफॉइड नहीं हुआ होता, लेकिन अचानक किसी एक को टाइफॉइड होता है, वो कैसे होता है, किसी या किसी फूड और वाटर की एक्टिविटी के थ्रू जो आपको पता जाए। सो उसमें आपका सोर्स क्या हुआ इमीडिएट, जब आप तो पूछते हैं हिस्ट्री लेते हैं ना कि आपने कुछ गलत तो नहीं खाया था, कुछ गंदा पानी तो नहीं पिया था, तो दीज आर एक्चुअली आप सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि इमीडिएट ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसके थ्रू उसने इन्फेक्शन एक्वायर किया। इसी तरह अब आगे अगर देखें तो टाइप्स ऑफ रेजर्वॉयर। रेजर्वॉयर की दो तरह की टाइप्स होती हैं, वन इज होमोलोगस रेजर्वॉयर, मतलब सेम स्पीशी में। अब वो जैसे हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए जो डिजीजेस मैन के थ्रू ट्रांसमिट होंगी, जिसमें मैन ही है विच इज बेसिकली हार्बिंग द एजेंट और सब कुछ कर रहा है, तो वो सारी होमोलोगस रेजर्वॉयर होगी। जैसे चिकन पॉक्स, उसमें एक केस होता है, एक ह्यूमन होता है जिसको चिकन पॉक्स होते हैं और वो ट्रांसफर कर रहा होता है डिजीज टू द अदर होस्ट। मीजल्स भी इसी तरह। और हेट्रोलोगस रेजर्वॉयर, इसमें क्या होता है, आपका एनिमल स्पीशी डिफरेंट कर दे, जैसे ह्यूमंस के फॉर्म में वहां पे एनिमल या नॉन लिविंग थिंग आ गई। जैसे हमने लास्ट टाइम सारी जूनोसिस पढ़ी है, दीज आर ऑल हेट्रोलोगस रेजर्वॉयर्स, द डिजीजेस जो कि हेट्रोलोगस रेजर्वॉयर्स से हो रही है। अब इसी बेसिस पे हम दो जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्फेक्शियस में पढ़ते हैं, दैट इज केसेस एंड कैरियर्स। ह्यूमन रिजर्वॉयर जहां पे एजेंट मल्टीप्लाई कर रहा है और सरवाइव कर रहा है, जिससे बेसिकली डिजीज फैलनी है, उनको हम दो तरह में डिवाइड कर देते हैं, केसेस और कैरियर्स, डिपेंडिंग के इन्फेक्शन किसमें आइडेंटिफाई किया। वो बंदा, वो रिजर्वॉयर जो आइडेंटिफाई हो जाए थ्रू एनी मीन्स, हिस्ट्री के थ्रू, लैब्स के थ्रू, एक्सीडेंटली लैब्स के थ्रू, इन्वेस्टिगेट, जो एक दफा आइडेंटिफाई मतलब उस पर लेबल लग गया कि वी नो ही इज इन्फेक्टेड, दैट इज अ केस। वाइल वो बंदा जो अनरिकग्नाइज, मतलब उसके अंदर एजेंट हो लेकिन वो अनरिकग्नाइज चलता रहे, वो एजेंट उसके अंदर रह भी रहा है, वो मल्टी मतलब रिजर्वॉयर के पूरा क्राइटेरिया फिल हो रहा है, वो रहे, उसको सर्वाइव करे, उसमें मल्टीप्लाई करे, वो पास ऑन करे इन्फेक्शन, लेकिन वो आइडेंटिफाई ना हो पाए, तो दोज आर कॉल्ड द कैरियर्स। तो बेसिकली ये जो ह्यूमन रिजर्वॉयर की जो केसेस और कैरियर्स में हम डिवाइड करते हैं, ये हम इस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि आइडेंटिफाई हो गया इन्फेक्शन, यानी जिसका आइडेंटिफाई हो जाएगा वी विल कॉल इट केस, और जिसका नहीं होगा लेकिन स्टिल कोई ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट कर रहा होगा, दैट विल बी अ कैरियर। ग्रेडियंट ऑफ इन्फेक्शन लास्ट टाइम भी हमने ये किया था। इसमें क्या होता है कि लेटेंट पीरियड वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ट्रांसमिट नहीं हो रहा होता, दैट इज द लेटेंट पीरियड। वो अंदर रहता है, शायद वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है कि वो हो रहा, लेकिन उसकी ट्रांसमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुई, वो अभी मूव है, मतलब वो सिर्फ बॉडी के अंदर कन्फाइंड है, दैट इज द लेटेंट पीरियड। लेकिन ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर रहा है, वो ट्रांसमिट भी होना शुरू हो गया, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स नहीं अपेयर हुए, तो दैट इज द सब क्लिनिकल फेज। और इसी तरह अगर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर रहा है और साइन एंड सिम्टम्स अपेयर हो गए हैं, देन दैट इज द क्लिनिकल फेज। तो ये जो तीन डेफिनेशन हमारी बनी हुई हैं, ये बेसिकली अपेयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स की बेसिस पे है कि साइन एंड सिम्टम्स हुए या नहीं हुए। एट टाइम्स ये होता है कि साइन एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे, लेकिन आपने एक्सीडेंटली टेस्ट कराया तो पता चला कि जी ये तो पॉजिटिव था। सो जैसे ही वो आइडेंटिफाई हो गया कि जी इसमें डिजीज है लेकिन इसमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं थे, ये हमारे एक्सीडेंटल है या हमने थ्रू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया है, तो वो हम उसको कहते हैं सब क्लिनिकल केस। इसी तरह टाइफाइड मेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोन कि जी अमेरिका में इन खातून को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ, मतलब टाइफाइड हुआ, और कभी टाइफाइड डिटेक्ट ही नहीं हो पाया क्योंकि उसे साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए। वो एक सिंपल सी कुक थी जो एक किसी रेस्टोरेंट में करते बिल्कुल किसी आखिरी कोने में बैठ के वो करती थी, कुकिंग करती थी, लेकिन उसकी वजह से अननोइंगली बहुत ज्यादा टाइफाइड के केसेस है, और जब सारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सब कुछ देखा गया तो पता चला कि she was the one who was harboring typhoid। उसको खुद तो साइन एंड सिम्टम्स हुए नहीं, लेकिन ऑर्गेनिज्म चलता रहा और इन्फेक्ट करता रहा। सो दीज पीपल आर नोन एज कैरियर्स। कैरियर्स वो हैं, ये चार उनकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। वो इन्फेक्टेड हो, इन्फेक्टेड का मतलब ये कि उनमें ऑर्गेनिज्म हो, वो हार्बर करे उसको,
उनमें कोई क्लिनिकल डिजीज ना हो और वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन करेंगे, और यस दे रिमेन अनआइडेंटिफाइड। ओके, सो दे रिमेन अनआइडेंटिफाइड। जब तक वो अनआइडेंटिफाइड रहेंगे वो कैरियर्स कहलाएंगे। अगर वो एक्सीडेंटली डायग्नोज हो जाएं, वहां पे कोई इस तरह का हो कि वो हो जाए, तो वो केसेस बन जाएंगे, बेशक वो सब क्लिनिकल हो या क्लिनिकल। अब इसी बेसिस पे हम कहते हैं कैरियर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: incubatory carrier, convalescent carrier and healthy carrier. अब incubatory carriers basically वो हैं कि वो डिजीजेस जिसमें अभी डिजीज इंक्यूबेशन पीरियड में होती है लेकिन ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है, मतलब साइन एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए, यू डोंट नो, उस बंदे को भी पता ही नहीं चला कि मुझे डिजीज हो गई है, उसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट गया, उसने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की, लेकिन अभी साइन एंड सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस हुए थे, ट्रांसमिट वो होना शुरू हो गया। तो दीज आर द इंक्यूबेटरी कैरियर्स, क्योंकि अभी साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए तो वो डायग्नोज ही नहीं हुआ, डायग्नोज नहीं हुआ, आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो वो कैरियर स्टेट में उसे हम लेबल कर देंगे। अब वो वहां पे अपने इंक्यूबेशन पीरियड में क्योंकि डिजीज ट्रांसमिट कर रहा है, सो दे आर इंक्यूबेटरी कैरियर्स। इसमें वेरी कॉमन एग्जांपल चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। बच्चों को जो दाने होते हैं वो बाद में निकलना शुरू होते हैं, लेकिन वो डिजीज जो ट्रांसमिट होती है वो 2 से 3 दिन पहले ही स्टार्ट हो गई होती है, उनकी नेजल सिक्रीशन में वो पहले ही जा रहे होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द इंक्यूबेटरी कैरियर, जिनमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए लेकिन डिजीज ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई है। इसी तरह कन्वेलेसेंट कैरियर्स, ये वो वाले कैरियर्स हैं, कन्वेलेसेंट फेज वो होता है कि एक दफा साइन एंड सिम्टम्स आए, उसके बाद वो साइन एंड सिम्टम्स खत्म हो गए, मतलब वो पेशेंट ये समझ रहा है कि वो हील कर रहा है, अब वो ठीक हो रहा है, उसके साइन एंड सिम्टम्स खत्म हो गए तो उसे लगता है उसने इन्फेक्शन से रिकवर कर लिया हुआ है, लेकिन उसका इन्फेक्शन रिकवर नहीं हुआ था, उसके साइन एंड सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए थे, वो इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिट कर रहा था। दिस इज एग्जैक्टली द केस ऑफ टाइफाइड मैगी, जिसमें हमने ये कहा कि वो वहां पे उसमें शायद उसे कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ, लेकिन वो वहां पे उसके बाद वो करता गया। सो एक कन्वालेसेंट कैरियर बेसिकली वो होते हैं जो वो लोग साइन एंड सिम्टम्स दिखाते हैं, मतलब केसेस, जब वो उनके साइन एंड सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं, दे कंसीडर देमसेल्फ कि उनका इन्फेक्शन खत्म हो गया है, लेकिन बॉडी अभी उसको पूरी तरह वॉश ऑफ नहीं कर पाई होती, तो वो अभी भी डिजीज ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कन्वालेसेंट कैरियर। हेल्दी कैरियर वो होते हैं जिनको थ्रू आउट साइन एंड सिम्टम्स होते ही नहीं। ये इंक्यूबेटरी तो वो है ना कि साइन एंड सिम्टम्स से पहले, कन्वालेसेंट हुआ है साइन एंड सिम्टम्स के बाद। सो ये बेसिकली इंक्यूबेटरी और कन्वालेसेंट केसेस की एक वो वाली टाइम है जब हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स से पहले और बाद के। हेल्दी वाले वो हैं जो थ्रू आउट सब क्लिनिकल रहे, उनमें कभी साइन एंड सिम्टम्स हुए ही नहीं, लेकिन वो डिजीज ट्रांसमिट करते रहे। सो दीज आर कॉल्ड हेल्दी कैरियर। तो जब सब क्लिनिकल केसेस, जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सब क्लिनिकल में और कैरियर में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली उसका डिफरेंस यही है कि जो हेल्दी कैरियर होते हैं वो बेसिकली सब क्लिनिकल केसेस भी होते हैं जो अपेरेंटली हेल्दी लग रहे होते हैं, उनमें कभी साइन एंड सिम्टम्स आए ही नहीं, और वो डिजीज ट्रांसमिशन भी कर रहे होते हैं। सो वो सब क्लिनिकल का क्राइटेरिया भी पूरा कर रहे हैं कि उनमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, सो दीज आर सब क्लिनिकल केसेस। और कैरियर्स का भी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं कि वो आइडेंटिफाई नहीं हुए लेकिन दे आर ट्रांसमिटिंग द डिजीज। सो हेल्दी कैरियर्स आर बेसिकली सब क्लिनिकल केसेस। इसी तरह ड्यूरेशन ऑफ कैरियर्स की बेसिस पे भी हमारे डिवाइड होता है, कुछ टेम्पररी होता है, कुछ क्रॉनिक होते हैं। टेम्पररी ये होता है कि इंक्यूबेटरी और कन्वालेसेंट, जैसे इंक्यूबेटरी एक टाइम पीरियड के लिए, फिर साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे तो वो केसेस में डिफाइन हो जाएंगे, वो वाले मतलब वो, तो वो वाले पेशेंट्स जो पहले इंक्यूबेशन में थे और फिर सिम्टम्स में डेवलप हो गए, सो दीज आर इंक्यूबेटरी कैरियर्स। इसी तरह कन्वेलेसेंट कैरियर्स, कन्वेलेसेंट कैरियर के आप जब रिकवर कर रहे हैं, बॉडी अभी उसको थोड़ी देर के लिए शट ऑफ कर रही है, तो वो टेम्परेरी टाइम के लिए अगर है तो कन्वेलेसेंट कैरियर। लेकिन अगर ये फेज या सब क्लिनिकल का फेज कन्वेलेसेंट या हेल्दी, ये वाला फेज 6 वीक से ऊपर एक्सटेंड कर गया, तो फिर हम उनको क्रॉनिक कैरियर्स दे देंगे। कुछ डिफरेंट लिमिट तो बताते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में इसके 6 वीक लिखे, सो यू जस्ट नीड टू नो कि वो एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सक्रीट किए जा रहे हैं, सो दे आर क्रॉनिक कैरियर। एंड हु आर मोर इम्पोर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकली, डेफिनेटली कैरियर्स। यस, दिस इज वेरी राइट, किसी ने किया है कि इंक्यूबेटरी कैरियर इन केस ऑफ कोविड, दैट इज वेरी ट्रू,
क्योंकि इसी वजह से कहते हैं उसमें कोविड में इंक्यूबेटरी कैरियर्स भी होते हैं और हेल्दी कैरियर्स भी होते हैं। जैसे जो सब क्लिनिकल केसेस हैं वो आपके टेम्परेरी कैरियर्स बन जाते हैं, वहां पे उनको कभी कोविड हुआ ही नहीं, लेकिन आपने कई ऐसे केसेस ऐसी बाबा इंसिडेंसेस भी सुनी है कि साइन एंड सिम्टम हुआ ही नहीं, अचानक टेस्ट कराया क्योंकि उसका एक कोविड के बंदे से कांटेक्ट था, तो उसके भाई का टेस्ट कराया कि देख लेते इसको हुआ या नहीं, तो उसका भी पॉजिटिव आ गया, लेकिन वो कहेगा मुझे तो कोई साइन एंड सिम्टम ही नहीं आया। So these are temporary healthy carriers जिनको कुछ नहीं आया, ये सब क्लिनिकल केसेस थे जो एक्सीडेंटली डायग्नोज हो गए, बट दे वर हेल्दी कैरियर एट दैट टाइम। वो जिन जिन लोगों से मिला था उनको डिजीज स्प्रेड कर रहा था। इसी तरह कोविड में इंक्यूबेटरी कैरियर भी होते हैं कि अभी आपको साइन एंड सिम्टम्स हुए नहीं और आप पहले ही डिजीज स्प्रेड कर रहे हो, तो सो दिस इज वेरी ट्रू। आपके ये कोविड में ये दोनों चीजें आ जाती है एंड दे आर टेम्परेरी कैरियर। सो एपिडेमियोलॉजिकली अगर देखा जाए ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कैरियर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन केसेस। इसी तरह सब क्लिनिकल केसेस आर मोर इम्पोर्टेंट देन एविडेंट केसेस। क्यों? क्योंकि केस तो जब उसको साइन सिम्टम्स आएंगे वो डॉक्टर के पास चला जाएगा, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन जो कैरियर्स होंगे वो उनको क्योंकि साइन दे थिंक दे आर हेल्दी, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, कोई एक्सीडेंटल पकड़ा गया तो पकड़ा गया, लेकिन वो डिजीज अननोइंगली डिजीज ट्रांसमिट करोगे। जैसे कोविड का एक केस होगा, तुम उससे हाथ भी नहीं मिलाओगे, तुम उसके कमरे में भी नहीं जाओगे कि जी इसको तो कोविड है, और वो खुद भी बच के रहेगा, वो खुद भी साइड पे रहेगा, वो आइसोलेशन में जाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जिसको कोई साइन एंड सिम्टम ही नहीं है वो आपके साथ घूम रहा होगा और आपको बाद में पता चलेगा कि उसको तो कोविड था। सो दीज आर मोर इम्पोर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकली द अनआइडेंटिफाइड केसेस। इसी तरह मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसकी अगर हम एक टोटल एक स्लाइड बनाएं तो ह्यूमन रिजर्वॉयर हमने, अब अगर तुम याद करो तो हमने चेन ऑफ ट्रांसमिशन किया था। चेन ऑफ ट्रांसमिशन का पहला कंपोनेंट इज रिजर्वॉयर और सोर्स। तो हम उस रिजर्वॉयर को फर्दर सब कंपोनेंट कर रहे हैं कि रिजर्वॉयर दो तरह के होते हैं, केसेस एंड कैरियर्स। केसेस में होते हैं क्लिनिकल, सब क्लिनिकल एंड लेटेंट इन्फेक्शन, प्राइमरी इंडेक्स और सेकेंडरी केस में आप आगे बताते हैं। और कैरियर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो इंक्यूबेटरी कन्वालेसेंट हेल्दी भी हो सकते हैं, वो टेम्परेरी क्रॉनिक भी हो सकते हैं, और उनका डिफरेंट पोर्टल भी हो सकता है। So this is the reservoir. Now coming to the second link of chain of transmission, that is modes of transmission. अब इन्होंने spread कैसे होना है, दो तरीके हैं, two broad categories, direct transmission या फिर indirect transmission. Direct transmission क्या है कि ये रहा आपका reservoir और ये रहा आपका host, इन दोनों ने डायरेक्टली डिजीज ट्रांसमिट कर लिया है, इनके बीच में कोई चीज नहीं है। So there is no thing within them. ये था, ये इन्फेक्शियस एजेंट इस रिजर्वॉयर में पड़ा हुआ था और उसने इस होस्ट को देनी थी, उसने डायरेक्टली वो इन्फेक्शियस एजेंट उसको दे दिया। So this is direct transmission. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है कि जो रिजर्वॉयर है उसके बीच में कोई एक इंटरमीडिएट चीज आ गई, जैसे हमने पहले बात की, जैसे उस रिजर्वॉयर के बीच में एक सोर्स आ गई और उसके थ्रू वो गया, मतलब इसने अपना वहां पे उसको डायरेक्टली नहीं दिया, ये अपना रेगुलरली बायोलॉजिकली उसे एक्सक्रीट कर रहा था, एक मिडवे कोई चीज निकली है जो जाके उस बेचारे को वो कर रही है। सो दिस इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसको फर्दर देखते हैं आगे। डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैन बी ऑफ दीज 5 टाइप्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब एक पेशेंट है, उसको कोई डायसेंट्री है, उसको कोई कॉलर है, वो वॉशरूम जा रहा है, उसको वो भी हुआ हुआ है, डायरिया भी हुआ हुआ है, वो वहां पे वो वॉशरूम जा रहा है, वो पीसेस अपने वहां पे क्लीन करता है, नहीं वो बगैर हाथ धोए वो अगले से मिल लेता है, हाथ मिला लेता है, और उस बंदे को उसकी वजह से उन डर्टी हैंड से उसने डायरेक्ट इन्फेक्शन दिया, उसकी वजह से ट्रांसमिशन हो गया। दिस इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसी तरह कोविड में जिसको जो स्नीजिंग है, जो ये सारे कफिंग है, वो हाथ पे करता है उसी तरह, और उस हाथ से वो अगले को मिला ले और वो अगला उसको इन्फेक्शन हो जाए, सो दिस इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसी तरह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी वही स्नीजिंग वाली चीज, जो हाथ के थ्रू जो कॉन्टैक्ट के बजाय आपके इन्फेक्शन के जो ड्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली अगले को ट्रांसमिट होता है। अच्छा, इस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को थोड़ा सा अभी हम आगे क्लियर करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से, बट रिमेंबर इट कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन। जैसे एक कोविड का बंदा वो कॉफ करे, जो उसके मुंह से और उसके नोज से जो पार्टिकल्स निकले वो सीधा जाके अगले बंदे के ऊपर गिरे और वो उसको इनहेल कर ले, सो दिस इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसी तरह कॉन्टैक्ट विद सॉइल, अगर तुम ये देखो तो ये डायग्राम हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी है, दिस इज टेटनस।
कि आपका ऑर्गेनिज्म वहीं पे रेजरवॉयर में सीधा उसका कांटेक्ट हुआ है ह्यूमन के साथ, ससेप्टेबल होस्ट के साथ, और डिसीज हो गई. सो डायरेक्ट कांटेक्ट विद सॉइल, दैट इज अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन. इसी तरह अगर फर्स्ट करो कोई एक डॉग बाइट आपको हुई है या ऐसा हुआ, तो दैट इज अगेन डायरेक्ट इनोकुलेशन, कि वो उसमें वो रिजर्वॉयर था, उसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट था, उसने बाइट किया और डायरेक्टली ससेप्टेबल होस्ट को डिजीज दे. सो दिस इज डायरेक्ट इनोकुलेशन. इसी तरह पेरिनेटल ट्रांसमिशन, उसमें मदर के थ्रू जो जाती है, उसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन भी आ जाती है, लेबर और डिलीवरी के दौरान जो फीटस का डायरेक्टली होता है उससे भी आ जाती है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में वो डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड कर रही है, वो रिजर्वॉयर है, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन है वो उसको दे रही है, तो दिस इज पेरिनेटल ट्रांसमिशन. अच्छा, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में व्हीकल बॉर्न नंबर 1, वेक्टर बॉर्न, एयरबॉर्न, फोमाइट बॉर्न एंड अनक्लीन हैंड एंड फिंगर. अब ये जो सारे हैं, इनमें और डायरेक्ट ट्रांसमिशन में सिर्फ एक इंटरमीडिएट होस्ट का फर्क है. एट टाइम्स उसको समझना मुश्किल हो जाता है. जैसे व्हीकल बॉर्न इज वेरी सिंपल. कोई भी वो डिजीज जो फूड, वाटर या किसी बॉडी से रिलेटेड चीज से फैलेगी, मतलब ब्लड के थ्रू, सीमेंट के थ्रू, सिक्रीशंस के थ्रू, ये सारी व्हीकल बॉर्न डिजीज हो जाएगी. वो वाली डिजीजेस जो किसी उसके थ्रू फैलेंगी, किसी बॉडी रिलेटेड थिंग के थ्रू, किसी सिक्रीशन के थ्रू, ब्लड के थ्रू, वो आके व्हीकल बॉर्न हो जाएगी. इसको हम अब ये आगे क्लियर करते हैं. इसी तरह वेक्टर बॉर्न, वो वाली डिजीज, ये तो बहुत सिंपल है, वो वाली डिजीजेस जो किसी ऑर्थ्रोपोड के थ्रू फैलेंगी, वो आपकी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हो जाएंगी. अब उसमें हो सकता है कि वो ऑर्थ्रोपोड सिर्फ सोर्स एज अ सोर्स काम करे, या फिर वो कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट रेजर्वॉयर भी हो, वो डिपेंड करेगा. इसी तरह एयरबॉर्न, एयरबॉर्न में ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड डस्ट. अब इस एयरबॉर्न का जो हमने पहले डायरेक्ट ट्रांसमिशन कही है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वो याद रखो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, ना वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहा और ना मैंने डस्ट कहा. सो दीज आर 3 डिफरेंट टर्म्स जो हम अभी आगे क्लियर करते हैं. इसी तरह फोमाइट बॉन्ड, फोमाइट बॉन्ड वो वाली जो हमने व्हीकल बॉन्ड में चीजें एक्सक्लूड कर दी, वाटर, फूड एंड बॉडी रिलेटेड थिंग, उसके अलावा जिसके थ्रू ट्रांसमिट करेगा दैट विल बी फोमाइट बॉन्ड. जैसे आपके इन्फेक्टेड बेड लिनन्स, इन्फेक्टेड शीट, ये सर्फेसेस जो आपकी कंटामिनेटेड सर्फेसेस होती हैं वो सारी, इनके थ्रू अगर यहाँ पे पड़ा रह गया है उनके थ्रू. इसके अलावा मतलब जिस जिस चीज को उसने रिजर्वॉयर ने टच किया है और उसके बाद वो तो गायब हो गया है, वाटर, फूड और बॉडी, लेकिन उस पे वो रहा इन्फेक्शन और उसके थ्रू वो फैल गया, तो दैट इज फोमाइट बॉन्ड. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इज अनक्लीन हैंड एंड फिंगर्स. अब ये भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन से डिफरेंट है, इसको भी हम बारी बारी लेके चलते हैं. तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में व्हीकल बॉर्न आ गई, व्हीकल बॉर्न में हमने कहा फूड एंड वाटर बॉर्न व्हीकल बॉर्न में आ जाएगी. और इसी तरह वो जो डिजीजेस ट्रांसमिट होंगी ह्यूमन उसके थ्रू, किसी चीज के थ्रू, जैसे एक हेपेटाइटिस बी का बंदा था या सी का बंदा था, उसने ब्लड डोनेशन कर दी. अब वो ब्लड डोनेशन करके वो कहीं चला गया, ब्लड उसका वहां पे पड़ा रहा, उसमें वो ब्लड बैंक में, बाद में कोई उसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई, बाद में कोई एक बंदा आया और उसको वही वाला ब्लड लग गया, उसको हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिट हो गया. इसी तरह कोई एक इन्फेक्टेड स्ट्रिंज थी, वो स्ट्रिंज जो है, एक बंदा आया वहां पे, एक डॉक्टर, उसने उसको लगाई है, अब उस स्ट्रिंज के थ्रू वहां पे वो जो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रिंज के अंदर बैठ गया, उस ब्लड के अंदर था जो स्ट्रिंज के अंदर है, और वही स्ट्रिंज आपने दोबारा से यूज कर ली, तो ये आपकी व्हीकल बॉर्न हो गई. तो ये जो सारी ट्रांसमिशन होती है, दिस इज कॉल्ड व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन. तो अगर तो वो रेजर्वॉयर डायरेक्टली उस बंदे को दे के चला गया है तो वो आपकी डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगी, लेकिन उसकी कोई एक चीज है जिसकी वजह से, कोई एक सोर्स है जिसकी वजह से डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, एंड ही नेवर नोज कि वो कहाँ गया और कैसा हुआ, और उनका आपस में कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ दोनों का, ना रेजर्वॉयर का और ना होस्ट का. सो दैट विल टर्न इनटू व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन. तो डायरेक्ट कांटेक्ट में बेसिकली व्हीकल, जो आपका रेजर्वॉयर है और जो आपका होस्ट है, उनका आपस में कांटेक्ट बहुत जरूरी है. अगर कोई चीज इनडायरेक्टली जा रही है, मतलब उसने तो ब्लड दिया था, अब उसको पता ही नहीं है कि वो बंदा कहाँ है, जिसको उसके ब्लड की वजह से डिजीज हो गई है, दैट विल बी लेबल्ड एज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. उनका आपस में आमना सामना कोई नहीं हुआ, दैट इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, एंड इट विल बी व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन.
इसी तरह वेक्टर बॉन्ड ट्रांसमिशन क्या होता है कि जब एक ऑर्थोपोड इन्वॉल्व है। इसमें अगर तुम ये देखो हमारे दो लगाई हुई है हमने, एक होती है बायोलॉजिकल, एक होती है मैकेनिकल। मैकेनिकल ये है कि फ्लाइज के थ्रू, फ्लाइज ना बाइट करेंगी ना कुछ और करेंगी, वो सिंपली ये करेंगी कि वो जहाँ पे बैठेंगी, वो अगर वो किसी इंफेक्टेड सैनिटेशन, बैड सैनिटेशन, पुअर हाइजीन वाली जगह पे बैठती हैं सारा टाइम, वहां पे वो सारा आपका फीकल मैटर वो बना हुआ है। उसमें कोई एक ऐसा बंदा भी था जिसको टाइफाइड था, उसका वो सारा फीकल मैटर ड्रेन हुआ, वो उधर पड़ा हुए थे वो सारे इन्फेक्शियस एजेंट, उन्होंने मैकेनिकली वो ट्रांसफर कर दिया, उसकी टांग को लगा, उसके विंग्स को लगा, उसकी बॉडी को लगा, और फिर वो जब कहीं और बैठी, किसी और के खाने पे बैठी, तो वो वाला जो सारा वो था वो मैकेनिकली ट्रांसफर, मतलब जो आपका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, जो एजेंट है, वो उसके अंदर नहीं गया, वो उसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, वो उसके अंदर डिवाइड नहीं हुआ, वो उसके अंदर वो डेवलप नहीं हुआ, वो उसका काम सिर्फ ये था कि यहाँ से लो और वहां पे दो। सो दीज विल बी मैकेनिकल ट्रांसमिटर्स। बायोलॉजिकल ट्रांसमिटर्स वो होते हैं जिसमें वो मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, वो सरवाइव करता है, और या फिर वो डेवलप करता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो डेवलप भी कर सकता है, वो मल्टीप्लाई भी कर सकता है, वो दोनों कर सकता है। तो दीज आर बायोलॉजिकल। जैसे मच्छर, देश पे उसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम का सबने थर्ड ईयर में लाइफ साइकिल पढ़ा हुआ है। क्या होता है कि वो ह्यूमन से मच्छर उसको लेता है, उसके बाद वो उसके अंदर वो सिर्फ ट्रांसफर नहीं करता, उसके अंदर उसकी एक स्टेज की मैचुरेशन भी होती है, और फिर वो ट्रांसफर करता है। सो यहाँ पे वेक्टर जो डिजीज ट्रांसमिट कर रहा है, वो ना सिर्फ उसको ट्रांसमिट कर रहा है बल्कि उसकी डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व है। तो दीज आर बायोलॉजिकल वेक्टर्स। ओके, सो वेक्टर बॉन्ड में दो तरह के, एक वो जिन्होंने सिर्फ ट्रांसमिट कर दिया, जैसे कि एक डाकिया इधर से गया उधर कर दिया, और एक वो हो गए जिन्होंने, अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शियस न्यूक्लियाई का अगर देखो, जो मैंने पहले कहा था जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तीन तरह के होते हैं। जब ड्रॉपलेट्स निकले, वो या तो हो सकते हैं छोटे, और उनमें म्यूकस और उसका वाटर का कंटेंट थोड़ा सा हो, और जो आपका डायरेक्ट होस्ट है वो बिल्कुल 30 से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो, तो वहां पे जो वो उसके मुंह से निकलेगा वो सीधा उस होस्ट पे फॉल करेगा, वो उसको वो इनहेल कर लेगा, इट बिकम्स ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो हम ये मिडल में देख रहे हैं। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट इन्फेक्शन। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसके इर्द गिर्द म्यूकस और वाटर की कोटिंग बहुत ज्यादा हो, तो वो वहां पे वो इतनी दूर ट्रेवल ही ना कर सके, वो जैसे ही निकले दे फेल डाउन और फॉल ऑन द सर्फेसेस, और उनके थ्रू वो एक्वायर करें, तो दिस इज कॉल्ड डस्ट। और ये भी हो सकता है कि वो जो निकले हैं वो इतने छोटे हैं, उनमें म्यूकस और कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल 1 to 10 माइक्रोन के हैं, कि वो इतने हल्के हैं कि वो एयर में भी सस्पेंडेड रहते हैं, और जो होस्ट है, जो आपका ससेप्टेबल होस्ट है, वो 30-60 सेंटीमीटर के फासले पे नहीं है, लेकिन वहां पे वो जब आएगा तो वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से उनको वो वहां पे वो इनहेल करेगा और हो जाएगा। अब उस टाइम ना रिजर्वॉयर बैठा है ना वो उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, लेकिन उसने वो अंदर आया तो उसने ले लिया, तो दैट इज द ड्रॉपलेट न्यूक्लियर। सो दिस इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए कि वो जो होस्ट है वो बिल्कुल आपके 30 to 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के रेंज में हो, तो जैसे ही न्यूक्लियर निकले वो उसने डायरेक्ट इनहेल कर दिया। दिस इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड डायरेक्ट ट्रांसमिशन। न्यूक्लियाई एंड डस्ट, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड डस्ट, ये उसके दोनों तरफ के एंड्स है। एक वो बहुत हैवी थे जो नीचे गिर गए और फिर उसको टच करके आपने दे दिए, और अगर या फिर वो बहुत लाइट थे तो वो हवा में ही लटके रह गए। और ये जो तीनों दीज आर बोथ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, और ये तीनों हमने कोविड में देखे हैं। इसी वजह से सोशल डिस्टेंसेस क्यों, ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन खत्म हो जाए। गुड वेंटिलेशन क्यों, ताकि आपका ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से ट्रांसमिशन ना हो। और आपकी चीजों के डिसइंफेक्शन क्यों, ताकि जो डस्ट है उससे इन्फेक्शन ना हो। सो कोविड ने आपको ये तीनों चीजें जो है वो डायरेक्टली करती है, वहां पे मैनेज करती है। ये इसकी और एग्जांपल करने के लिए क्लियर, एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट, बेसिकली वो जिसे एयरबॉर्न कह रहा है दैट इज ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, और कॉन्टैक्ट इज द डस्ट, व्हाइल ड्रॉपलेट डायरेक्टली इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन।
अनक्लीन हैंड एंड फिंगर्स, ये बिल्कुल वैसे ही है कि रिजर्वायर और सोर्स अगर सेम होगा, जैसे टाइफाइड का केस है, वो आया है और उसने डायरेक्टली हाथ में ला लिया और आपको उससे हो गया है, मतलब आपका एजेंट और रिजर्वायर का होस्ट का डायरेक्ट आपस में कांटेक्ट हो गया, दैट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन। बट एट टाइम्स ये भी होता है कि वहां पे आपका वो आपसे उसने हाथ में लाया, अभी आपको क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स नहीं है ना, आपने एक्वायर किया है, लेकिन आपने वही वाला हाथ जाके दूसरे एक फ्रेंड से मिलाया और खुद हाथ धो के खड़े हो गए, तो जिसको मिलाया उसको कोविड हो गया और खुद हाथ धो लिया और तब तक नोज में नहीं गया तो उसको नहीं हुआ। तो अनक्लीन हैंड फिंगर वो है आपका सोर्स, बीच में कोई और बंदा ऐड हो जाए जिसको खुद इन्फेक्शन ना हो लेकिन उसने दूसरे को ट्रांसमिट कर दिया, दैट इज वाई नो हैंडशेक इन कोविड। इसी तरह ससेप्टेबल होस्ट, अब हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन के तीसरे पार्ट पे आ गए, ससेप्टेबल होस्ट जिसमें पोर्टल ऑफ एंट्री होता है, इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे एंटर होगा, कहाँ पे वो डेवलप करेगा और एग्जिट कैसे करेगा ताकि नेक्स्ट करेगा। लास्ट टाइम एक आया था क्वेश्चन के इंक्यूबेशन पीरियड और लेटेंट पीरियड में क्या फर्क। अच्छा, लेटेंट केस वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म है लेकिन अभी वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा, मतलब वो बॉडी में कहीं छुप के बैठ गया, अगर वो हल्का फुल्का मल्टीप्लाई हो रहा है तो होगा, लेकिन वो कहीं मूव नहीं कर रहा, ना वो साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, ना वो ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज द लेटेंट पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड ये है कि वो वाला पीरियड जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर हुआ है टिल साइन एंड सिम्टम्स। अब उस इंक्यूबेशन पीरियड का एक पार्ट होता है लेटेंट पीरियड, जब तक वो ट्रांसमिट नहीं होगा वो उसे हम कहेंगे कि वो लेटेंट पीरियड में है, लेकिन वंस इट स्टार्ट्स इन द पीरियड, वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाए लेकिन अभी साइंस और सिम्टम्स ना हो तो कहलाएगा इंक्यूबेशन पीरियड ही, लेकिन उसका लेटेंट पीरियड खत्म हो गया, वो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी में चला गया। सो इंक्यूबेशन पीरियड इज व्हाट अपेयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, उसका मार्जिन जो है वो साइन एंड सिम्टम्स है। तो इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस होना, साइन एंड सिम्टम्स होना, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड एंड डिजीज। वाइल लेटेंट पीरियड इन्फेक्शियस डिजीज में होगा कि जब वो बॉडी के अंदर एंटर हुआ और अभी ट्रांसमिट नहीं हो रहा, तो दैट इज लेटेंट पीरियड। once it start getting transmitted then it will be period of communicability। so incubation period में हो सकता है कि एक जो शुरू का फेज होता है वो latent period होता है और आखिरी फेज period of communicability होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में latent period is equivalent to incubation period, जब तक वो डिजीज मैनिफेस्ट नहीं होगी वो latent period ही कहलाएगी। so non communicable basis में these are intermittent, लेकिन infectious disease में ये period of communicability पे डिपेंड है। लास्ट थिंग इज जो ससेप्टेबल होस्ट है उसमें केसेस जो होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी केस, इंडेक्स केस एंड सेकेंडरी केस। प्राइमरी केस वो होता है जिसमें डिजीज सबसे पहले होती है, ओके जो सबसे पहले डिजीज होती है दैट इज प्राइमरी केस। हो सकता है वो आइडेंटिफाई हो जाए, हो सकता है वो आइडेंटिफाई ना हो, वो सब क्लिनिकल रह जाए, वो लोगों को डिजीज ट्रांसमिट करता है। तो जो केसेस उसके कॉन्टैक्ट से होंगे दोज विल बी सेकेंडरी केसेस। इंडेक्स केस क्या होता है? इंडेक्स केस इज वन जो आइडेंटिफाई होता है, जैसे मैंने कहा प्राइमरी केस आइडेंटिफाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वंस वहां पे उस एक बंदे को हुआ, उसने मुख्तलिफ लोगों में स्प्रेड किया, अब जो उसने चौथे पांचवे को किया था वो अचानक आइडेंटिफाई हो गया, सो दैट विल बी द इंडेक्स केस, मतलब वो हमारे रिकग्निशन में सबसे पहले आया, जो रिकग्नाइज सबसे पहले होगा दैट इज इंडेक्स केस, व्हाइल इन्फेक्ट सबसे पहले होगा वो प्राइमरी केस। सो दैट मींस द एंड ऑफ द लेक्चर। We have done definitions, dynamic of disease transmission and chain of transmission, and this is it. Anybody having a question, you can call, you can message me on WhatsApp and I will directly reply. Till then, Allah.